Good morning, class. In last class, we were discussing about the eating disorder. So, in the eating disorders, I told you first one is the when the disturbance in the eating patterns of the individual. Yeah, it is the conditions in which the eating patterns of the individual is completely disturbed. Yeah, due to any psychological disturbance, yeah, mental illness, if eating patterns and the eating behavior of the individual is completely disturbed, then it is known as the anorexia and eating disorder. Then it is classified into the two types. First one is the anorexia nervosa. Second is the bulimia nervosa. Second one is bulimia nervosa. We have already discussed about the anorexia nervosa in the previous classes, and so now in this class we will discuss about bulimia nervosa. So before discussing about the bulimia nervosa, we will again discuss about the management of anorexia nervosa. So in the management of the anorexia nervosa, it is the case of the anorexia nervosa. First one is the different types assessment and the questionnaire methods that are used for assessing the condition of the patient in the cases of the anorexia nervosa. These are the eating disorder examinations. Second one is the eating disorder examination questionnaire. Third one is the SCOF questionnaire. Next one is the some other test like is the chest x-ray hai, bone density test hai, whatever. So first one is the eating disorder examinations questionnaire. So, in the case of the management of the anorexia nervosa, first one is the eating disorder examination questionnaire. These are the screening tests. Those are used for the patients in the cases of the anorexia nervosa. It is provide the measurements of ये जो EDEQ एक स्क्रीनिंग क्वेश्चनायर मेथड से eating disorder examination questionnaire. इसमें क्या होता है? It provide the measurements of the range and the severity of the eating disorder. First one है EDEQ is a self-report questionnaire methods. It is discovered by the Cooper and it is discovered by the Cooper and the Fairburn in the 1987 for the assessment of the eating disorders. यानी कि जो EDEQ है, EDEQ क्या है? Eating disorder examination questionnaire. Eating disorder examination questionnaire को सबसे पहले ये एक प्रकार का सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स है या सेल्फ रिपोर्ट मेथड्स है जिसके द्वारा हम किसी भी पेशेंट्स के ईटिंग डिसऑर्डर्स को असिस कर सकते हैं. फर्स्ट वन. सेकंड वन क्या है कि इसको सबसे पहले 1987 में फेयरबर्न और कूपर के द्वारा डिस्कवर किया गया था फॉर द असेसमेंट ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर. फर्स्ट वन. सेकंड वन इज द इन द EDEQ के अंदर कुछ प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि हैव यू फेल्ट क्या आपने आपको मोटा महसूस करते हैं? हैव यू हैड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लॉस वेट? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है. अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा का केस है तो पेशेंट से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आप को ओबीस फील करते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या आपको मोटे ओबीस हैं. सेकंड वन इज द क्या आप अपने आप को क्या आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है अपने वेट को लॉस करने की? क्या आप अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, या आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं? या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सेटिस्फाइड हैव यू बीन विद योर वेट? क्या आपका जो वजन है आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं? और सेकंड वन इज हाउ डिससेटिस्फाइड व्हेन यू हैव बीन योर बॉडी शेप? क्या आप अपनी बॉडी शेप से किस प्रकार से डिससेटिस्फाई हैं? क्या आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं या आपका टमी बाहर आ रहा है, वॉट एवर. सो दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द ईटिंग डिसऑर्डर एग्जामिनेशन क्वेश्चनायर. यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर एग्जामिनेशन क्वेश्चनायर एक मेजरमेंट टेस्ट है. इसको 1987 में कूपर और फेयरबर्न के द्वारा डिस्कवर किया गया था
इसको 1987 it is discovered by the Cooper and the Fairbairn for the assessment of the eating disorder. It is the measurement test. In this condition, some questions are asked from the patient. इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस पेशेंट से पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या आप अपने वेट से सेटिस्फाई हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी की शेप और साइज को चेंज करना चाहते हैं, या वी कैन से क्या व्हाट आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वॉट एवर दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द पेशेंट. सो इट इज नोन एज द स्कॉफ, इट इज नोन एज द EDEU, या वी कैन से एक प्रकार से इसको कह सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आयर. सो सबसे पहला एनोरेक्सिया का मैनेजमेंट में क्या स्क्रीनिंग करने के लिए EDEU क्वेश्चन आयर मेथड यूज करते हैं. सेकंड वन इज द स्कॉफ क्वेश्चन आयर मेथड. सेकंड वन जो क्वेश्चन आयर है SCOF questionnaire method. SCOF means sick, control, one, fat. S means sick. C means cut. Yeah, C means cut. Next one is the or control, cut or control. O means off. Next is the F. F means fat, and last F means food. First one is the S. SCOF questionnaire also a method for assess the measurements of the anorexia nervosa patient. जो anorexia nervosa का patient होता है उसका assessment करने के लिए SCOF questionnaire method यूज किया जाता है. S means फर्स्ट हमने आपको बताया था EDEU test. EDEU test क्या है? Eating disorder examination questionnaire मेथड 1987 में कूपर और फेयरबर्न द्वारा डिस्कवर किया गया था फॉर असेसमेंट द कंडीशन ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर केसेस. सेकंड वन जो है वो इसको क्वेश्चनर मेथड है, जिसमें S मींस sick, C मींस cut and control, O मींस off, F मींस fat and F मींस food. In this condition some question are asked from the patients that do you make yourself sick if you are when you because you feel uncomfortably full. यानी क्या अपने आप को सिक महसूस करते हैं जब आप अपने आप को अनकंट्रोलेबल फुल महसूस करते हैं. जब आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि आप अनकंट्रोलेबल आपका जो एब्डोमेन है फुल हो चुका है, तो इस कंडीशन में क्या आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं. या डू यू वरी दैट यू लॉस कंट्रोल ओवर हाउ मच यू ईट. क्या आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि आप अपनी ईटिंग पैटर्न पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं. या नेक्स्ट वन इज द हैव यू रिसेंटली लॉस्ट योर वेट वंस योर वेट. या क्या आपका वेट लॉस हो चुका है, इसमें है आपका वेट लॉस हो रहा है या ऑफ हो रहा है. नेक्स्ट वन इज द डू यू बिलीव योरसेल्फ योर फैट व्हेन अदर्स यू आर. क्या आप अपने आप क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आप मोटे हैं जब आप उससे आपसे दूसरे लोग कहते हैं. और वुड यू से दैट फूड डोमिनेट्स योर लाइफ. अगर आप क्या कहते हैं कि फूड किस प्रकार से आपकी लाइफ को डोमिनेट करता है. दिस टाइप्स के क्वेश्चन स्कॉफ क्वेश्चनर में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द सम इन्वेस्टिगेशंस. दीज आर द फर्स्ट वन इज द CBC. सेकंड वन इज द टेस्ट फॉर द प्रोटीन लेवल. नेक्स्ट वन इज द ईकोकार्डियोग्राम. नेक्स्ट इज द चेस्ट एक्सरे. टेस्ट फॉर द लिवर, किडनी एंड थायराइड प्रॉब्लम T3, T4 and TSH. Next is the bone density test for the identification of the osteoporosis and the osteomalacia. So here is the first one is the complete CBC count. Complete CBC counts में क्या है, WBC है, RBCs हैं, हीमोग्लोबिन है, जिससे पेशेंट अगर एनीमिक है तो पता चल जाता है फर्स्ट वन. सेकंड वन अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का केस है तो पता चलेगा फर्स्ट वन. सेकंड वन इज द टेस्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर पेशेंट्स का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इसके लिए सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द टेस्ट फॉर द प्रोटीन लेवल. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड द चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे को इसलिए कराया जाता है अगर ट्यूबरक्लोसिस का केस बनता है ड्यू टू द सीवियर केसेस ऑफ द एनीमिया, तो चेस्ट एक्सरे, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन होता है तो पता लगा सकते हैं. टेस्ट फॉर द लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको LFT. नेक्स्ट इज द किडनी. नेक्स्ट इज द थायराइड प्रॉब्लम T3, T4 and the TSH. Next one is the bone density test. These all are the investigations. Those are done in the cases of the
screening through the in the cases of the anorexia nervosa. Next one is the goal for the treatment. इसके जो गोल है, फर्स्ट इज द रिस्टोर नॉर्मल वेट फॉर द एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट्स का नॉर्मल वेट है उसको रिस्टोर करना है. सेकंड वन इज द रिड्यूस बिंज ईटिंग एंड पर्गिंग फॉर द बुलिमिया नर्वोसा, प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ रिलैप्स. रिलैप्स क्या है, रीअकरेंस ऑफ द डिजीजेस आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि किसी भी डिजीज के रीअकरेंस होने को रोकना. नेक्स्ट इज नोन एज द प्रिवेंट द रिलैप्स. नेक्स्ट इज द improve self control, self esteem and the behavior. Next is the touch patients proper nutritional habits, teach the patients about the proper nutritional habits, उसको कौन सी डाइट लेना है, विटामिन कितने लेने हैं, विटामिन कितने अमाउंट्स में लेने हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, व्हाटएवर. नेक्स्ट वन इज द, इसके अलावा टीच द पेशेंट्स प्रॉपर न्यूट्रिशनल हैबिट्स, व्हाटएवर. treat the physical complication and any associated psychiatric disorder, यानी कि फर्स्ट वन इज द, इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करना है, और उसके अलावा जो भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको भी दूर करना है. सो दीज आर द गोल फॉर द ट्रीटमेंट. नेक्स्ट वन इज द सम थेरेपीज, दीज आर द फैमिली थेरेपी. सेकंड वन इज द मोटिवेशनल साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, व्हाटएवर. इन द साइकोलॉजिकल थेरेपीज में क्या देना है, फर्स्ट वन इज द साइकोलॉजिकल थेरेपी. In the psychological therapy, these are the family therapy, CBT, cognitive behavior therapy. First one is the family therapy, cognitive behavior therapy, motivational therapy, and the behavior therapy. Next one is the motivational therapy, and last one is the behavior therapy. These are the psychological therapy for the management of the anorexia nervosa. Second one is the pharmacotherapy. So the pharmacotherapy, first one is the antidepressants are provided. Second one is the nutritional supplements. In the antidepressants, these are the serotonin, SSRI. In the cases of the antidepressant, these are provided the SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors. SSRI में क्या देना है, SSRI अगर पेशेंट को डिप्रेशन का केस है और उसके कारण अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप, जो कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप होता है उसके पीछे कुछ कोमॉर्बिड साइकियाट्रिक कंडीशन होती है, जैसे कि मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, व्हाटएवर. सो इन दिस कंडीशन में एंटीडिप्रेसेंट के केस में SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स फर्स्ट वन इज द. सेकंड वन इज द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. इनमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स. नेक्स्ट वन इज द जिंक सप्लीमेंट है, जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स. नेक्स्ट इज द विटामिन डी सप्लीमेंट्स. अगर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो इससे क्या, तो वेट इंक्रीज होता है, फर्स्ट वन. सेकंड वन क्या होता है, फर्स्ट वन इंक्रीजिंग ऑफ द वेट. सेकंड वन होता क्या है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है और ऑस्टियोमलेशिया उसके चांसेस कम हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द जिंक सप्लीमेंट्स, सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर गेनिंग द वेट. नेक्स्ट इज द, अगर पेशेंट्स अंडरवेट है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना है, वेट को रिस्टोर करना है, व्हाटएवर. नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एनोरेक्सिया नर्वोसा. इस अगर पेशेंट्स को लंबे समय तक एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एनीमिया, बोन डेंसिटी लॉस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, neurological problem. Next is the electrolyte imbalance, heart problem like is the abnormal heart rhythm, or last one is the hormonal changes. These all are the complications are found in the cases of the anorexia nervosa. So first one is the hormonal changes. Hormonal changes में क्या है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, सो रिप्रोडक्टिव जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन इसका इम्बैलेंस होने लगता है, इसमें चेंजेस आने लगते हैं. सेकंड वन इज द हार्ट प्रॉब्लम. इन द हार्ट प्रॉब्लम एबनॉर्मल हार्ट रिदम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बोन डेंसिटी. बोन डेंसिटी क्या है, अगर लगातार जब पेशेंट्स प्रॉपर रूप से
सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स नहीं लेता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेता है, तो बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके कारण ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, व्हाटएवर. नेक्स्ट वन इज द एनीमिया एंड द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो दीस ऑल आर अबाउट द एनोरेक्सिया नर्वोसा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये देखा गया है कि पेशेंट्स अवॉइड द इनटेक ऑफ फूड व्हेन पेशेंट पर्सन इज कॉन्शियस, मोर कॉन्शियस अबाउट द शेप, size of the shape, weight, size of the body. In this condition what will happen, he will avoid the food. अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन तो इसमें क्या होता है, पर्सन अपनी बॉडी की शेप के बारे में, साइज के बारे में, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, वेट के बारे में, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है. इस कंडीशन में क्या करता है, वो फूड को अवॉइड करना स्टार्ट करता है. लेकिन अगर बुलिमिया नर्वोसा का केस है, तो इन द बुलिमिया नर्वोसा मींस रिकरेंट एंड फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ द ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड. यानी कि when the eating impulsion come in the mind, on that time patient is unable to control his or her eating pattern and he will consume in the large amount of the food. It is known as the bulimia nervosa. यानी कि इसमें होता क्या है कि पेशेंट ने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, फिर उसको 1 घंटे बाद या 2 आवर्स बाद क्या होता है, एक ईटिंग इंपल्स डेवलप होता है. ईटिंग इंपल्स कहां से डेवलप होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है. इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी जो एक्सिस वाला पार्ट है, ये हमारे ईटिंग पैटर्न को रेगुलेट करता है. जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो इसके कारण क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप होता है. एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस में क्या देखा गया था कि पेशेंट अपनी बॉडी की शेप के बारे में, साइज के बारे में, वेट के बारे में, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, और इसके कारण क्या होता है, पेशेंट ईटिंग को अवॉइड करने लगता है. लेकिन अगर बुलिमिया नर्वोसा का केस है, तो इसमें क्या है, पेशेंट्स के ब्रेन में ईटिंग इंपल्स आते हैं. जैसे ही ईटिंग इंपल्स आते हैं तो पेशेंट्स अपनी ईटिंग इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड का इंटेक करता है आफ्टर एवरी 2 आवर्स. इट इज नोन एज द बुलिमिया नर्वोसा. सो बुलिमिया नर्वोसा is characterized by the recurrent and frequent episodes of eating the large amount of food and feeling lack of control over the eating. यानी कि patients consume the large amount of the food in the less duration of the time. It is known as the bulimia nervosa. First one. Second one is the it is binge. इसमें binge में क्या होता है, रिकरेंट जो रिकरेंट बिंज ईटिंग एपिसोड्स. इसका फर्स्ट वन क्या होता है कि पेशेंट्स लार्ज अमाउंट इंटेक द लार्ज अमाउंट ऑफ fluid in the food in the less than 2 hours. First one is sense of lack of control over the eating pattern. यानी कि सिंपल सी कहानी है इसमें बिल्कुल कि होता क्या है, eating bulimia nervosa is characterized by the recurrent and frequent episodes of the large amount of eating the large amount of the food because he or she cannot control his or her eating impulses. यानी कि इसमें पेशेंट्स का होता है अपनी ईटिंग इंपल्स को कंट्रोल नहीं करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है. सेकंड वन इज द रिकरेंट पर्गिंग बिहेवियर प्रिवेंट द वेट गेन. लेकिन इसमें होता क्या है, रिकरेंट पर्गिंग बिहेवियर. पर्गिंग बिहेवियर्स क्या होता है, पेशेंट वॉमिटिंग करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यानी कि गले में हाथ डालता है, खाना खा लिया, फिर पेशेंट को गिल्ट फील होता है, गिल्ट फील होने के बाद वो गले में हाथ डालता है, सेल्फ अपने से सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है. सेकंड वन इज द लैक्सेटिव यूज करता है, डायूरेटिक्स यूज करता है, पिल्स का यूज करता है. डाइटरी पिल्स हैं, लैक्सेटिव हैं. लैक्सेटिव में क्या है, क्रीमाफिन है, एनीमा है, क्रीमाफिन है, एनीमा है, व्हाटएवर, ऐसी सारी चीजों को यूज करता है. फर्स्ट वन. सेकंड वन क्या है, इसके अलावा डायूरेटिक्स हैं. डायूरेटिक्स में लेसिक्स के है, लेसिक्स को यूज करता है जिसके अंदर फ्यूजनामाइड नामक साल्ट पाया जाता है. डाइटरी पिल्स हैं. यानी कि बुलिमिया जो नर्वोसा है ये 2 सब टाइप्स का होता है. इसमें दो प्रकार का बिहेवियर डिसीज डेवलप होता है. फर्स्ट वन है पर्गिंग बिहेवियर. फर्स्ट क्या है, पर्गिंग बिहेवियर, और सेकंड वन इज द नॉन पर्गिंग बिहेवियर. non-perking behavior.
Two types of the behavior are developed in the patient in the cases of the bulimia nervosa. In the bulimia nervosa एक प्रकार की कंडीशन है, इसमें क्या होता है, patients consume the large amount of the food in the short interval of time because patient is unable to control his or her eating impulses. First one. Second one is that in this condition क्या होता है, patient is more conscious about body shape and the size. इस कंडीशन में क्या होता है, two types of behaviors are developed. First one is the purging behavior, second one is the non purging behavior. अगर purging behavior डेवलप होता है तो इसमें क्या होता है, patient laxative, second is the diet pills, next is the first one is the laxative है, second is the diet, third one is the diuretics, and next is the self-induced vomiting. यानी वर्किंग बिहेवियर के अंदर क्या होता है, पेशेंट सबसे पहला लैक्सेटिव यूज करता है, डाइटिक्स यूज करता है, डायूरेटिक्स यूज करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग. लैक्सेटिव का एग्जांपल है जैसे क्रीमाफिन है, क्रीमाफिन को यूज करेगा, चारकोल सस्पेंशन यूज करेगा, या नेक्स्ट वन इज द अगर डाइटिक्स यूज करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, डायूरेटिक्स यूज करता है, डायूरेटिक्स में आपका आता है लैसिक्स है, लैसिक्स के अंदर एक फ्लूजानामाइड साल्ट पाया जाता है जो कि हमारी क्या जीएफआर किडनी के अंदर एक ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट होती है उसको इंक्रीज कर देता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, पेशेंट सेल्फ से वोमिटिंग करना स्टार्ट करता है. सेकंड वन इज द नॉन पर्गिंग बिहेवियर. इन द नॉन पर्गिंग बिहेवियर में क्या होता है, फास्टिंग, पेशेंट एक्सेसिव फास्ट करता है, और सेकंड इज द एक्सेसिव एक्सरसाइज. बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन में दो प्रकार का बिहेवियर पेशेंट्स के अंदर डेवलप होता है. पहला है आपका पर्गिंग बिहेवियर, सेकंड इज नॉन पर्गिंग बिहेवियर. पर्गिंग बिहेवियर में पेशेंट्स क्या करता है, अपने ईटिंग इंपल्स को कंज्यूम तो कर लेता है ईटिंग लार्ज अमाउंट में, उसके बाद लैक्सेटिव है, डाइटिक्स है, डायूरेटिक्स है, नेक्स्ट सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग है. नॉन पर्गिंग बिहेवियर में फास्टिंग है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, व्हाटएवर. नेक्स्ट वन इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ बुलिमिया नर्वोसा. So in the epidemiology of the bulimia nervosa, it is the first is the onset. It is start in the late adolescence. First is the late adolescence में start होता है. Second one is the female are more suspected in the comparison of the male. यानी यहाँ दो चीजें हैं. सबसे पहले it is start in the late adolescence और female और जो male का रेशियो है वो 10:1 का रेशियो होता है, यानी 10 फीमेल और एक मेल. नेक्स्ट वन इज द इसका जो प्रिवेलेंसी है 0.1 to 3% टीनेज और द यंग एडल्ट फीमेल, यानी इसकी जो प्रिवेलेंसी रेट्स है वो 0.1 to 0.3% इन द यंग एंड द एडल्ट फीमेल्स के अंदर होती है. नेक्स्ट इज द साइकोलॉजी ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा. साइकोलॉजी इस अगर पेशेंट बुलिमिया नर्वोसा का केस है तो उसमें पेशेंट की क्या साइकोलॉजी रहती है, फियर ऑफ बिकमिंग द फैट. सेकंड इज द फूड इज द इमोशनल पेसिफायर. सबसे पहले क्या होता है बुलिमिया नर्वोसा का केस में पेशेंट अपनी बॉडी की शेप के बारे में, साइज के बारे में कॉन्शियस होता है, अवेयर रहता है, और इस कंडीशन में क्या होता है लेकिन वो अपने ईटिंग इंपल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता. एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, सेम कंडीशन होती है लेकिन वह अपने ईटिंग इंपल्स पर कंट्रोल करता है. तो यहाँ जब ईटिंग इंपल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो दो प्रकार का बिहेवियर डेवलप हुआ. पहला है आपका पर्गिंग बिहेवियर, सेकंड इज नॉन पर्गिंग बिहेवियर. अगर पेशेंट बुलिमिया नर्वोसा का केस है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट की किस प्रकार की साइकोलॉजी होती है. तो दीज आर द fear of becoming fat or gaining the weight. Patient is having the fear for fatty. Next is the food is the emotional pacifier, यानी कि फूड क्या उसके इमोशंस को इम्पैक्ट करता है. शेम और लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जैसे ही उसके ब्रेन में इंपल्स आता है फूड से रिलेटेड तो फूड को उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और एक लार्ज अमाउंट में फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट वन इज द सो दीज ऑल आर द साइकोलॉजी ऑफ बुलिमिया नर्वोसा. नेक्स्ट वन इज द sign and symptoms of bulimia nervosa. When the vomiting, stomach adds the vomit
acts in the vomiting, erodes the tooth enamels, resulting the cavity and the discoloration. जब पेशेंट सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करना स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है, हमारे एब्डोमेन के अंदर एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जब पेशेंट सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करना स्टार्ट होता है तो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है, उस वॉमिटिंग में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जब वो HCl बार बार हमारे टीथ के टच में आता है तो उसके कारण क्या होता है, इरोड्स या हमारी जो इनामेल है वो इरोड मतलब वो हट जाता है, और डिस्कलेशन ऑफ द टीथ, यानी कि फर्स्ट इरोड द टूथ एनामेल्स और डिस्कलेशन ऑफ द टीथ। सेकंड वन इज द वॉमिटिंग, laxative and diuretics, plus sodium and potassium from the body, and electrolyte imbalance and the potential rhythms are disturbed. जब पेशेंट बार बार लैक्सेटिव का, डायूरेटिक्स का, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी से जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप होता है। थर्ड वन इज द self-induced vomiting can result in the irritations and tears in the lining of the throat, esophagus, and the enlargement of the parotid gland. जब पेशेंट्स बार बार सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है तो हमारी ईसोफेगस में, थ्रोट्स में यहाँ लाइनिंग हो जाती है और एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन इज द लैक्सेटिव कैन क्रिएट द डिपेंडेंसी, देन जो नॉर्मल बॉबल मूवमेंट्स है उसमें इंपेयरमेंट होने लगता है। नेक्स्ट वन इज द एब्यूज ऑफ द एमिटिक्स, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, टॉक्सिसिटी, हार्ट फेलियर और द डेथ। अगेन रिपीट करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जब पेशेंट सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है तो उसके कारण क्या होता है, ड्यू टू द वॉमिटिंग HCl, हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड पाया जाता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl बार बार टीथ के टच में आता है, और जब टीथ के टच में आता है तो हमारे टीथ में एक इनामेल पाया जाता है, इनामेल, तो इनामेल का क्या होता है, इनामेल हटने लगता है और डिस्कलेशन ऑफ द टीथ होता है। सेकंड वन क्या है, एक्सेसिव यूज अमाउंट्स में डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव और वॉमिटिंग करने के कारण सोडियम, पोटेशियम और एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो बॉडी से बाहर बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज द कार्डियक जो रिदम है उसमें डिस्टर्बेंस होने लगता है। एक्सेसिव अमाउंट्स में लैक्सेटिव यूज करने के कारण जो नॉर्मल बाउल पैटर्न्स है उसमें डिस्टर्बेंस होने लगता है। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के कारण क्या होता है, पेशेंट्स को, जब पेशेंट लगातार सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कैसे करता है, बार बार अपने गले में उंगली डालता है, थ्रोट से, इसोफेगस से यहाँ लाइनिंग डेवलप होने लगती है, और बार बार सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के कारण के एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन इज द, इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स और एब्यूज ऑफ द एमिटिक्स। लंबे समय तक अगर पेशेंट एमिटिक्स को यूज करता है तो उसके कारण हार्ट फेलियर है, टॉक्सिसिटी है और डेथ जैसी कंडीशन डेवलप होती है। तो दीज ऑल आर द, वी कैन से, signs, some other signs and symptoms of the eating bulimia nervosa. These are the eat rapid much faster than the normal. इस प्रकार के केसेस में क्या देखा जाता है, पेशेंट्स काफी रैपिडली खाना खाता है। नेक्स्ट इज द फील्स पावरलेस टू स्टॉप ईटिंग, ही और शी कैन नॉट कंट्रोल हिज और ईटिंग इम्पल्स और ईटिंग पैटर्न। अब खाना खाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द सोर थ्रोट। नेक्स्ट इज द some other symptoms. These are the gastrointestinal distress, irritation from the laxative abuse, severe dehydrations, kidney problem from the diuretics abuse, यानी कि लगातार डायूरेटिक्स को यूज करता है तो किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, whatever. Some other signs and symptoms, these are the recurrent binge eating है, टूथ इनामिल का इरोड होने लगता है, whatever. Next is the, so these all are the, we can say, signs and symptoms of bulimia nervosa. Next one is the treatments of bulimia, yeah, we can say the management of bulimia nervosa. The management, first one is the investigation. In the investigation, these are the, first one is the physical examination, second one is the find out the physical abnormality of the bulimia nervosa. नेक्स्ट वन इज द EDEQ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, EDEQ, ईटिंग डिसऑर्डर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया, ईटिंग डिसऑर्डर
examination questionnaire. Second one is the scope sick control effect of fat food. दो प्रकार के क्वेश्चन आयर यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज द EDEQ, सेकंड वन इज द स्कोप क्वेश्चनायर. नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन, फाइंड आउट द फिजिकल एब्नॉर्मलिटी इन द केसेस ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा whatever. Next in the treatments, first is the in the support groups, cognitive behavior therapy, interpersonal therapy. In the drugs, these are the sertraline, some drugs like as the SSRI drugs provide किया जाता है. These drugs कौन सी हैं? SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors. इसमें Zoloft, paroxetine, fluvoxamine, paroxetine, whatever. यानी कि SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors. In the selective serotonin reuptake inhibitors, these are the antidepressant drugs. In this condition, some drugs, these are the sertraline, paroxetine, fluvoxamine or fluoxetine. Sertraline, paroxetine, fluvoxamine or fluoxetine, these are the drugs are provided in the cases of the bulimia nervosa. Next is the topiramate, combination of the cognitive behavior therapy and the SSRI, whatever. The goal of the treatment in this condition, weight को maintain करना है, normalize the eating pattern of the patient, prevent the medical complication, prevent the relapse. Some other conditions of the eating disorder treatment modalities, इसमें first one is the, अगर पेशेंट्स को ईटिंग डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना है तो इस कंडीशन में तीन प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है. फर्स्ट वन इज द मेडिकेशन, सेकंड वन इज द साइकोथेरेपी, सेकंड वन इज द साइकोथेरेपी, नेक्स्ट इज द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक. तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के अंदर क्या है, पेशेंट्स को ईटिंग इंपल्स को किस प्रकार से टीच द ईटिंग पैटर्न, एक प्रॉपर ईटिंग पैटर्न पेशेंट्स को बताना है. सबसे पहले मेडिकेशन देना है. मेडिकेशन पे क्या है, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जिसमें सेरेट्रालिन, पेरोक्सेटिन, फ्लुवोक्सामाइन, फ्लॉक्सेटिन. नेक्स्ट वन इज द टोपरामेट. नेक्स्ट द साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फर्स्ट वन. Second one is the family therapy, supportive therapy, interpersonal therapy, whatever. Next is the PMT, behavior modification techniques. In the behavior modification techniques में patients को how to eat, how eating pattern किस प्रकार से use करना है, whatever. These all are the. Next one is the medical management, acute nutritional intervention develop करने, whatever. So these all are about the treatments of the, we can say, bulimia nervosa. Next one is the binge eating disorder. Binge eating disorders में क्या होता है, पेशेंट्स लार्ज अमाउंट्स को फूड यूज करता है, so it is known as the binge eating disorder. So now I summarize my topic in this. So आज today we discuss about the management. आज हमने management of the anorexia nervosa and the bulimia nervosa के बारे में डिस्कस किया. एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले पेशेंट की स्क्रीनिंग और इंटरव्यू करते हैं. इसमें EDEQ, ईटिंग डिसऑर्डर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया. सेकंड वन इज द स्कोप टेस्ट, थर्ड वन इज द LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट, थायराइड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नेक्स्ट वन इज द ECG. नेक्स्ट वन इज द ब्लड एग्जामिनेशन, व्हाटएवर. ये सारी चीजें की जाती हैं. इसके अलावा जब पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो ट्रीटमेंट के लिए इसके अलावा बोन डेंसिटी टेस्ट वगैरह किया जाता है. ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मेडिकेशन में क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में कैल्शियम है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स है, व्हाटएवर. नेक्स्ट वन इज द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, व्हाटएवर. नेक्स्ट इज द बुलिमिया नर्वोसा. तो बुलिमिया नर्वोसा क्या है, इसमें पेशेंट्स ईटिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड एंड हिज और कैन नॉट कंट्रोल हिज और हर ईटिंग इंपल्स है. इसमें क्या होता है, पेशेंट्स लार्ज अमाउंट में फूड को कंट्रोल कर ईट करता है और अपने ईटिंग इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है. नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम. इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन इज द एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स ड्यू टू द सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, डिस्टर्ब बाउल पैटर्न ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द laxatives. Third one is the disturbance in the kidney function due to excessive use of the diuretics, sodium electrolyte imbalance due to the excessive use of the emetics.
diuretics, laxatives, whatever. Next one is the management. ED, EQ है, scope है, SSRI है, whatever. So these all are about the eating disorder. In next class we will discuss about the personality disorders. Thank you.